Hey students, welcome to the class. So we are solving some problems from the oscillation chapter. Let's see the problem number 8. At what distance from the mean position is the speed of a particle performing SHM half its maximum speed given path length of SHM is 10 centimeter. So here we have to find the distance. Okay, so problem number 8. So in this problem we have to find the value of x, and what they have given us, the velocity, that speed is half of maximum velocity. So I have written v is equal to v max upon 2. ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें x का वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करने का है. यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके हाफ वेलोसिटी हमें दी है. सो बेसिकली वन वैल्यू इज मेंशन हियर, दैट इज पाथ लेंथ. जो पाथ लेंथ है, so path length is denoted by 2a and that is given 10 centimeters. So what is basically path length? See, when particle performs linear SHM, at that time if this is a positive extreme condition, this is negative and this is a mean position, then the maximum displacement, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, a होता है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, a होता है. This total length is known as a path length and that is given as 2a. तो उसका वैल्यू क्या होगा, this a plus a, so that will be 2a. जो path length है उसका जो वैल्यू है वो 2a है. इस वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू निकाल सकते हैं. So here 2a is equal to 10, therefore a is equal to 10 by 2 and this is a 5 centimeter. So this is, first we have the value of amplitude, that is 5 centimeter. So what basically we have to find the value of the displacement, and the given condition is that speed is half of the maximum speed. इसलिए मैंने क्या लिखा है, v का वैल्यू v max upon 2 लिखा है. So basically, so we have v is equal to v max upon 2. So here what is the formula for the velocity? We know that when particle is performing linear SHM, the velocity of the particle, the general expression for the velocity is omega root a square minus x square is equal to maximum velocity के लिए क्या फॉर्मूला है, a ओमेगा. सो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए a ओमेगा है डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे 2 से क्यों डिवाइड किया है हमने, क्योंकि जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है. सो दिस ओमेगा एंड दिस ओमेगा विल गेट कैंसल. Now we have that a square minus x square in square root, and here is a by 2. Now taking square of both sides, we have a square minus x square is equal to a square by 4. So here you can write, ये 4 जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4a square minus x square, यहाँ पे हो जाएगा a square. So if you are multiplying this, you will get 4a square minus 4x square, ये हो जाएगा a square. So remaining part I will write this side. So now you can write this as 4a square minus a square, ये minus 4x square उस साइड को जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a square 4x square. So for x square you can write, ये जो multiplication में 4 है, यहाँ पे डिवीजन में हम ले रहे हैं. जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा √3, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? लॉग टेबल में आप देख सकते हैं √3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 2. a का जो वैल्यू है, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अभी हमने निकाला था, दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, 5 सेंटीमीटर है, तो जो आंसर आ जाएगा वो सीजीएस में मिलेगा हमें. सो दिस विल बी x इज इक्वल टू, इससे हम जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2.5, 2 to the 4. सो दिस इज एंड रिमेनिंग 10. सो बेसिकली 2.5 व्हेन वी डिवाइड 5 बाई 2. सो अभी हम क्या करेंगे, ये 2.5 को 1.732 का ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके, आप ये रफ में कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं. सो 25 2 ज़ा 50, आई विल राइट हियर 5. ओके, 25 3 ज़ा 75 प्लस 5 दैट इज 80. 25 7 ज़ा 175 प्लस 8 दैट इज
183, okay, and 25 ones are 25 plus 18 that is 43, okay. तो यहाँ पे इस तरह सा वैल्यू मिला है. सो हियर इज डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 digit and here is after 3 digit. So after 4 digit I am giving point, so this will be 4.3300 यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर. सो फाइनली आई विल राइट दिस एज 4.33 सेंटीमीटर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 4.33 सेंटीमीटर. ओके, आई हैव डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय विथ 25 and then after I have given the decimal point after 4 digit. So you can do this calculation as per your own. So let's see next problem, that is problem number 9. In SI units, the differential equation of SHM is d square upon dt square is equal to minus 36x. Find its frequency and period. So the differential equation is given, that is d square x upon dt square is equal to minus 36x. Okay, so d square x upon dt square is given, that is minus 36x. Okay, so in this problem we have to find that frequency and period. Okay, frequency I am denoting it by small n and period is capital T. So basically the given equation is d square x upon dt square is equal to minus 36x, and we have the differential equation in the form as d square x upon dt square is equal to minus omega square x. ये इक्वेशन हमारे पास है. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जब वो यहाँ इस साइड को आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो व्हेन वी कंपेयर द बोथ द वैल्यूज एट दैट टाइम वी हैव from, let's consider from 1 and from 2 you can compare this equation. So LHS is same, तो RHS क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 36x. minus minus will get cancelled, this x also will get cancelled. So we basically have omega square is equal to 36. Now take the square root of this, so this will be omega is equal to 6. ओमेगा का वैल्यू हमें 6 मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड करने का है, बेसिकली यहाँ पे n और t फाइंड करने का है. सो फॉर दिस यू कैन राइट द बेसिक फॉर्मूला फॉर द ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई t. यहाँ पे हमारा ओमेगा का वैल्यू क्या है, 6 है. ओमेगा के नीचे में क्या लिखूंगा, 2 पाई बाई t, and here that is 6. Now you can write this t is equal to 2 pi by 6. Here is 2. What is the value of pi? That is 3.142 upon 6 is equal to t. Now just multiply. Okay, multiply this. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2 1s are 2, 2 3s are 6. So divided by 6. So this value we have 6.284 divided by 6. So when you divide this, so here you will get the answer basically 1.047. okay, 1.047 सेकंड. यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे लॉग टेबल का वगैरह यूज करके 1.047 मिल सकता है, 1.055 मिल सकता है. सो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1.05. okay, so approximately the value for the period that we get is 1.05. you have to use log table here, 1.05 second. okay, so you can use log table for this. Just divide it, 6.284 divided by 6. Now to find the frequency that is denoted by n from the capital T, it's very easy to find. So here we have n is equal to 1 by t because period is reciprocal to the frequency, therefore t is equal to, हमें n फाइंड करने का है यहाँ पे. so what is the value of capital T? that is 1.05. 1.05 है. हमें अभी यहाँ पे क्या करने का है, उसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे, सो रेसिप्रोकल लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 0.955 हर्ट्ज. ओके, 0.955 हर्ट्ज. So you have to use log table for this, find the reciprocal of 1.05. So in this way you can get the value. Okay, so let's see next one.
Next problem, problem number 10. Okay, so I will read it. A needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 centimeter with frequency 5 hertz. So amplitude is 4 centimeter, A का value है यहाँ पे 4 centimeter and frequency is 5 hertz. Okay, so amplitude and frequency is given. Find its acceleration. A का value हमें find करने का है acceleration 1/30 सेकंड आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजीशन. जो टाइम का जो वैल्यू दिया है ये हमें दिया है 1/30 सेकंड एंड क्या फाइंड करने का है यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करने का है. सो इन दिस केस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हियर दे हैव मेंशन्ड द मीन पोजीशन. प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया है? मीन पोजीशन. सो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन that time the value of x के लिए क्या होता है फॉर्मूला? a sin omega t. So x is equal to a sin omega t. So first we will find a फाइंड करेंगे. हम क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे. पहले क्या फाइंड करेंगे? x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे. सो हियर x a का वैल्यू क्या है? 4 है. ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय इट 10 to the power -2 and then this is hertz. So this is 4 into 10 to the power -2 sin. Okay, इसको हम क्या लिखते हैं? a sin 2 pi n into t. See, जो x का फॉर्मूला है वो क्या है? a sin ओमेगा t है. उसे हमने क्या लिखा है? a sin 2 pi n t. बिकॉज वी नो दैट ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi upon t होता है. और यू कैन राइट दिस एज n बिकॉज 1/t इज n. ओके, सो दिस बोथ फॉर्मूले आर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो जो ओमेगा का जो फॉर्मूला है उसे मैंने पुट किया है 2 pi n. सो नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज. a का वैल्यू हमने पुट किया है 4 into 10 to the power -2, 2 into ओके दिस इज पाई हियर एंड n का वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है एंड स्मॉल t का वैल्यू दिया है हमें, दैट इज 1/30. सो आई विल राइट दिस एज 4 into 10 to the power -2 साइन. ओके, सी हियर 5 6 30. इसका डिवीजन किया तो 6 मिला है हमें. जब आप 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली वी हैव दिस π/3. ओके, ये 2 3 क्या हो गया? 6 हो गया. 6 को भी डिवाइड कर दिया हमने. सो यहाँ पे मिलता है, ये जब आप सॉल्व करेंगे डिवीजन, सिंपल डिवीजन इज देयर. सो साइन π/3 मिलता है. क्या मिलता है? साइन π/3. सो हियर 4 into 10 to the power -2, जो साइन π/3 का जो वैल्यू है, साइन π/3 दैट इज √3/2. साइन π/3 का जो वैल्यू होता है वो क्या है? √3/2. So here you have to divide, you have to multiply it √3/2. So this will be 2 2s are 4. So you can write 2 into √3 into 10 to the power -2. So this is the value of x. x जो है हमने मीटर में फाइंड किया है, ये x का वैल्यू मिला है. लेकिन what is our target? We have to find the value of acceleration. हमें a का वैल्यू फाइंड करने का है. a is small a is acceleration. सो देखो अभी क्या होता है यहाँ पे. a का जो फॉर्मूला है आपको रिमेंबर होना चाहिए. a इज द -ω² x. व्हाट इज a? दैट इज -ω² x. बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा? दैट इज 2 pi n, उसका होगा स्क्वायर इंटू x. सी हियर ओमेगा का फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो क्या है? 2 pi n, उसका स्क्वायर जब करेंगे आप तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 pi स्क्वायर n स्क्वायर इंटू x. जस्ट स्क्वायर दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर करो यानी ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा. सो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे -4 इंटू पाई का वैल्यू दैट इज 3.142, उसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर. ओके, सो आई विल क्लियर दिस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आई थिंक n इज 5. ओके, n का वैल्यू क्या है प्रॉब्लम में? यस, n इज 5. देन x का वैल्यू क्या है? 2 into √3
into 10 to the power -2. ओके, सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ x के, ये वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है x का. सो यहाँ पे आप जब इसका सॉल्व करेंगे, ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस. one step I will write once again. So this will be 3.142 into 3.142, 5 का स्क्वायर 25 into 2. यहाँ पे √3 है, √3 का वैल्यू आता है 1.732 into 10 to the power -2. Okay, so you have to solve this, and after multiplication, so finally you will get the value. Okay, इसका आपको कैलकुलेशन करने का है अच्छी तरह से. So हमें जो फाइनली जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 34.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 34.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, सो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू मिला है हमें? एक्सेलरेशन का. सिंपल कैलकुलेशन है. आप पहले जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, बाद में लॉग टेबल का आप यूज अच्छी तरह से कर सकते हो. ओके, so if you have any doubts about multiplication you can ask me. Okay, next. So let's see next one. So our next problem is problem number 11. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम. पोटेंशियल एनर्जी पीई का वैल्यू दिया है इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल. सो फर्स्ट आई विल राइट इट. पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दिया है. ओके, सो हियर now you can see if mass of the particle is 20 gram, mass is given that is 20 gram, find the frequency of SHM. so mass is given, mass जो दिया है 20 ग्राम दिया है, mass का वैल्यू 20 ग्राम है. इसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम 20 into 10 to the power -3. see when we have to convert gram into kilogram, just multiply it by -3. So this is the value of mass. क्या फाइंड करने का है हमें यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी. लेट मी चेक वंस अगेन. सो हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. see here the value which is given, that is potential energy. so basically what is the formula for the potential energy? potential energy का जो फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जो इक्वेशन हमें दी है, जो वैल्यू दी है 0.1 है पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, सो आई विल राइट इट क्लियरली. पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. लेट्स कंसिडर दिस इज 1, दिस इज 2. सो व्हेन यू कंपेयर बोथ you have basically half m omega square x square is equal to 0.1 pi square x square. Now what I will do here, we will put the value of omega, that is 2 pi n. Okay, half m, omega का वैल्यू हमें मालूम है 2 pi n, उसका है स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर. सी हियर वी आर डिनोटिंग फ्रीक्वेंसी बाय स्मॉल n. ये स्मॉल n से हम हर प्रॉब्लम में स्मॉल n से हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं. इन केस इफ यू आर डिनोटिंग बाय इट बाय स्मॉल f, नो प्रॉब्लम. आप f से भी डिनोट कर सकते हैं, n से भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ओमेगा का जो फॉर्मूला है, क्या है ओमेगा का फॉर्मूला? 2 पाई n. सो जस्ट पुट दिस फॉर्मूला हियर एंड we have 0.5 square x square. So now you can square this m. So this will be 4 pi square n square x square 0.1 pi square x square. See, ये जो x square है उसे हम पहले भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हमने सॉल्व किया. अभी सिंप्लीफाई करने के बाद जो पाई स्क्वायर का वैल्यू और पाई स्क्वायर का वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है? कैंसल. सो हियर व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m,
यम का वैल्यू क्या है हमारे पास 20. ओके, इफ आई हैव टू चेक इट, यस 20 है. सो यू कैन राइट हियर 20 इंटू 4 इंटू एन स्क्वेयर. 0.1 जो है, ओके 0.1 उसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1. 0.1 क्या होता है 10 टू द पावर -1. नाउ when we are dividing this, so you have a 10, so this is okay. Is there is something remaining? Yes, because जो 20 है 20 के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये क्या है 10 टू द पावर -3 लिखना बाकी है, तो आप इसको यहाँ पे 10 टू द पावर -3 यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको 10 टू द पावर -3. ओके, सी हियर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 टू द पावर -3 है. 10 है और 10 टू द पावर -3 है, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, क्योंकि ये 10 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 टू द पावर -3 है. इंटू 4 इंटू n स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1. सो दिस वी हैव. एंड नाउ व्हाट आई विल डू हियर, actually we are finding here the value of frequency, that is n. Okay, so therefore n square is equal to 10 to the power -1 divided by, ये डिवीजन में जाने वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2. ओके, आप अभी क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4. ये -2 ऊपर जाने के बाद हो जाएगा यहाँ पे -1 10 टू द पावर +2. सो जो 1/4 होता है वो क्या होता है 0.25. ओके, 1/4 जब आप डिवीजन करेंगे क्या होता है 0.25, और ये जो है ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +1 +2 -1 +1. सो दिस इज द वैल्यू वेयर वी कैन राइट 2.5. ओके, यहाँ पे 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिट आगे बढ़ता है, ये जो डेसिमल पॉइंट उसको हम एक डिजिट आगे लेते हैं तो हमें मिलता है 2.5. जब आप लेंगे इसका स्क्वायर रूट तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.5. जो हमारे पास अभी लॉग टेबल है, लॉग टेबल में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.5. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 यू कैन फाइंड हियर, दैट इज 1.581. ओके, so what is that 1.581. so that is the exact answer which we want, 1.581 hertz. okay, so this is our answer. 1.581 hertz. okay, square root of 2.5 you can check in a log table. Square root, so first I will read the problem number 12. The total energy of a body of mass 2 kg performing SHM is 40 joule. Find its speed while crossing the center of the path. Mass and energy is given. Mass is 2 kg, जो mass का value है वो है 2 kilogram, and the total energy that is given 40 joule. So here we have to find the velocity when the particle cross the center of the path. क्या मेंशन किया है वहां पे, while crossing the center of the path. तो वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू हमें फाइंड करने का है वो कौन सा वैल्यू है, वेलोसिटी का वैल्यू है. लेकिन जब पार्टिकल सेंटर से जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है. सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी मैक्सिमम. मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू पूछा है इस प्रॉब्लम में. We know that the velocity is maximum at the center of path, therefore we have to find the maximum speed here. Okay, so just try to understand the total energy का जो फॉर्मूला है वो पहले लिखना पड़ेगा, m omega square a square. See here, we know that Vmax का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a ओमेगा है. जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, a square ओमेगा स्क्वायर. सो हियर यू कैन सी हियर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. सो ओ क्या है, वैल्यू वी मैक्स का स्क्वायर का है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी मैक्स का स्क्वायर. ओके, सी हियर
मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ए ओमेगा। एंड जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो हियर आई हैव सॉ दैट देयर इज ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. So for that I replace this value with Vmax square. Okay, it's very easy, just try to understand. We are putting omega square a square की जगह Vmax square. So यहाँ पे हो जाएगा Vmax square, यहाँ जो 2 है ये 2 ऊपर जाएगा, so this will be 2 into t divided by m. Now you can put the values. 2 into total energy is 40 divided by mass is 2. ओके, सो यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 2 है कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है v स्क्वेयर मैक्स का जो वैल्यू है वो है 40. जब आप v मैक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √40. नाउ यू हैव टू चेक दिस वैल्यू इन लॉग टेबल. लॉग टेबल में स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 है अवेलेबल, तो आप उसमें देख सकते हैं 40 का जो वैल्यू है दैट इज 6.325. क्या है वैल्यू, 6.325 मीटर पर सेकंड. द यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. यहाँ पे एम के एस यूनिट, यहाँ पे एम के एस यूनिट, इसलिए एम के एस यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकंड. जो टेक्स्ट बुक है आपका उसमें सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है और रॉन्ग यूनिट दिया है, सो यू हैव टू करेक्ट दैट यूनिट. सो यूनिट इज मीटर पर सेकंड.